Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, and today I'm with the part 5th of the previous video, that is the ectopic pregnancy. The contents to be covered today will be about the interstitial pregnancy, cesarean pregnancy, and management of the ectopic pregnancy. Talking about the interstitial pregnancy, only 2% of the pregnancies they get affected by this interstitial pregnancy in the total ectopic pregnancies. Basically, this interstitial pregnancy, it is located outside the uterine cavity, in that part of the fallopian tube that penetrates into the muscular wall of the uterus. So in one case it may be called as the within uterine pregnancy, but in the muscles of the uterus. And after it also because of the thin musculature, or the vascular musculature of the uterine walls, with the greater distensibility, the fetus grows and dissects the muscle fibers for a long period of the time before it gets terminated. And usually the termination is rupture, which takes place in late 3 to 4 months of the gestation. And when it ruptures, it is definitely associated with a massive intraperitoneal hemorrhages, because of the because due to its combined vasculation of the uterine as well as the ovarian arteries. And on the rare occasion, the abortion may take place through the uterine cavity. It is diagnosed is also very difficult, and it cannot be abruptly diagnosed as the interstitial pregnancy. And if we give what is called as for the early or the ruptured what is called as pregnancy, interstitial pregnancy, we give the local or MTX with follow up. And we can go for the laparectomy, and we can do the corneal resection of that part. And there can be the uterine rupture risk also in the subsequent pregnancy, in the next pregnancy as well. And if the rupture occurs there, then we can go for the hysterectomy. Now coming to the cesarean scar ectopic pregnancy, the cesarean scar ectopic pregnancy, it is clear in that the USG will show the totally empty of the uterine cavity, and that the gestational sac will be attached to the lower segment of the cesarean scar. Previous cesarean scar के lower segment पे ही attach हुआ होगा gestational sac. And the clinical features, they are similar to that of the threatened or the inevitable abortion, which we have already discussed. And Doppler imaging along with the USG can confirm the cesarean scar ectopic pregnancy. In the same way also, like in the previous interstitial, we give the MTX, that is the methotrexate injections. And for the multiparous, we go for the hysterectomy, and or we can resect the scar and suture the scar in the young patients, which may have the high risk of getting the ruptured. And if there is more risk and if the rupture occurs, then we can go for the complete hysterectomy of the client. There are various other rare types of the ectopic pregnancies as well. Like I will list them. Like there are the multiple ectopic pregnancy. There can be pregnancy after hysterectomy also, primary cephalinic pregnancy also, primary hepatic pregnancy also, retroperitoneal pregnancy also, diaphragmatic pregnancy also. These are the list of the other rare types of the ectopic pregnancies. Now, how can we generally manage the ectopic pregnancy? That is the management of the ectopic pregnancy. The basic, for the over past many of the years, this management of the ectopic pregnancy, it has evolved from हम क्या करते थे पहले, सेल्फ इंजेक्टमी करते थे,
जो कि रेडियल ऑपरेटिव अप्रोच होता था, टू मोर कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ ये बढ़ने लगा, टू द मोर कंजर्वेटिव सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल फॉर आवर अर्ली डायग्नोज या एडवांस्ड लेप्रोस्कोपी टेक्निक्स हम अब करते हैं, जिसकी वजह से हमें वी आर एबल टू मॉनिटर द पेशेंट आफ्टर द कंजर्वेटिव सर्जिकल और द मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड मोर ओवर मगर हम फोकस करते हैं कि जब हम मैनेज करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, इट शुड द ट्रीटमेंट मस्ट बी इंडिविजुअलाइज्ड, कि हर क्लाइंट को एक तरीके से हैंडल करना होता है। इट्स नॉट नेसेसरी एवरी क्लाइंट विल बी मैनेज्ड इन द सेम वे, जो भी टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, एंड मोर ऑन बेसिस ऑफ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि वो क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखा रहा है वो क्लाइंट, उसी के हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। एंड फॉर एनी टाइप ऑफ द मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल माइंड में रखा जाता है, चाहे वो एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या क्रॉनिक वाली। तो प्रिंसिपल इन द मैनेजमेंट ऑफ जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रेसिस्टेशन एंड लेप्रेक्टमी होती है, और लेप्रोस्कोपी, एंड दिस प्रिंसिपल इज केप्ट इन माइंड। टॉकिंग अबाउट द रेसिस्टेशन, वी हैव टू गिव एन एंटी शॉक ट्रीटमेंट। They are to be taken, these measures, anti-shock measures are to be taken very much energetically, और simultaneously हमें प्रिपेयर करना है फॉर द अर्जेंट लेप्रोस्कोपी लेप्रोक्टमी के लिए। और एंटी शॉक ट्रीटमेंट के लिए वी हैव टू मेक रेडी द क्लाइंट विद द IV लाइन इन्फ्यूजन्स। इसमें रिंगर सोल्यूशंस देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द रिंगर सोल्यूशन। इफ़ नेसेसरी वो हो जाता है, we can go arrangement is made for the blood transfusion. For that we take the HB sampling, blood grouping, cross matching, in fact BTCT भी करते हैं। एंड what is called as फिर हम क्या करते हैं, फॉर we prepare for the blood transfusion as well, because there may be the blood vessel rupturing on the laparoscopy, और the inside rupture हुआ होगा, तो उस वजह से हमें इस सब के लिए तैयार रहना पड़ता है। एंड आफ्टर ड्राइंग सम ऑफ द ब्लड वी कैन गो फॉर द क्रॉस मैचिंग, इसको कौन सा ये लग सकता है। एंड कभी कभी हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट भी करते हैं विद द क्रिस्टलाइड्स, हेमसील, आपने सुना होगा नाम, हेमसील देते हैं, वो कर सकते हैं। कैथराइजेशन वी गो फॉर, एंड जैसे मैंने बोला क्रिस्टलाइड्स देते हैं फॉर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, जिसको हम हेमसील बोलते हैं, वो क्या इसको बोलते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज़ द लेप्रोक्टमी। तो हम किस तरीके से लेप्रोक्टमी, हमें पहले हम जैसे कि एंटी शॉक ट्रीटमेंट किया, और उसी के साथ साथ हमें तैयार रहना है फॉर द लेप्रेक्टमी। लेकिन लेप्रेक्टमी के लिए इंडिकेशंस क्या होते हैं कि पेशेंट पहले ही डायनामिकली स्टेबल हमें रहना चाहिए, और अगर क्या इसको बोलते हैं रहना चाहिए, मगर इंडिकेशन तब करते हैं व्हेन द पेशेंट इज़ हेमोडायनामिकली अनस्टेबल, रेप्रोस्कोपी कंट्रा इंडिकेटेड है, एविडेंस ऑफ द रप्चर है। लेकिन इसका भी एक प्रिंसिपल रहता है लेप्रेक्टमी का, इट शुड बी क्विक इन एंड क्विक आउट। जो ही हम लेप्रेक्टमी करें, इट शुड बी वेरी मच डन फास्ट, एंड वी हैव टू जस्ट विड्रॉ ऑल्सो वेरी फास्ट। तो उसके बाद हम लेप्रेक्टमी में आपको पता ही है कि हम क्या इसको बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन, रैपिड एक्सप्लोरेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी करते हैं, एब्डोमिन को ओपन करते हैं, इन्फेंटिबुलर लॉन्गिट्यूडनली ओपन करते हैं, ग्रैस्प करते हैं यूट्रस को, और पूरी तरीके से अंदर देखते हैं, ओवरीज को देखा जाता है, ट्यूब्स को देखा जाता है, बोथ साइड्स के, और क्विकली हम इंस्पेक्ट करते हैं टू फाइंड आउट वेदर देयर इज इनसाइड एनी रैप्चर और नॉट। ठीक है, वो करते हैं। उसके बाद हम सेल्फ इंजेक्टमी करते हैं, जो एक डेफिनेटिव सर्जरी है। एंड वी देन अगर एक्साइड हम एक्सिजन करते हैं किसी ट्यूब का, वो हम स्टडी के लिए भेजते हैं, फॉर एनी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम तैयार रखते हैं उसके लिए। कभी कभी अगर हमें दूसरे का ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, मतलब जो ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो उसके लिए हम ऑटो ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ऑटो ट्रांसफ्यूजन का मतलब यूजुअली
ये ऑटो ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता है, बल्कि हम तैयार ही रखते हैं ब्लड जो क्रॉस मैचिंग के दौरान हमें मिला होता है, अवेलेबल रखते हैं। बिकॉज ऑफ इट इज़ एडवर्स रिएक्शंस हम ऑटो ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं। जब अब अगर करना पड़े तो हम, अगर डोनेट ब्लड अवेलेबल नहीं होगा तो हम फ्रेश ब्लड पेरिटोनियल कैविटी से क्लाइंट का ही निकालते हैं, जो कि हम कलेक्ट करते हैं फॉर ऑटो ट्रांसफ्यूजन। और ये कलेक्शन हम स्ट्रेनर में करते हैं, थ्रू स्ट्रेनर, जिसमें लगभग 4 to 5 लेयर्स होती है स्टेराइल गॉज पीसेस की। बोतल में कनेक्ट करते हैं जिसमें साइट्रेट सोल्यूशन होता है, इन पोर्शन के 5 parts ऑफ ब्लड एंड 1 part ऑफ साइट्रेट सोल्यूशन, वो कलेक्ट करके फिर उसी क्लाइंट को वापस इन्फ्यूज़ किया जाता है। प्रेगनेंसी लेप्रोस्कोपी इसी में आता है कि वो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो प्रेगनेंसी व्हेन द client is hemodynamically stable, and इसमें भी similar followed it is followed by the similar number of the uterine pregnancies, and for the shorter operative period operating time होता है इसका। और we can go for the sulfinostomy which is excised less than 2 centimeters, and the incision is given 10 to 15 mm। ये सारा मैनेजमेंट रहता है हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। होपफुली यू गॉट दीज, एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो सून इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।